I am Fazal Alam. We will discuss about exercise 1.3 number system class 9. Right, first question is here. Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion it has. ये जो फ्रैक्शन में नंबर दिया हुआ है p/2 के फॉर्म में, इसे हम लोग को डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। डेसिमल एक्सपेंशन में लिखने के लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 को 36 से। तो यहाँ पे 100 जो है 36 मिल जाएगा, तो 0.0 100 300 63 कैंसिल ये करके हम एक जीरो बराबर के मुताबिक लिख सकते हैं। 100 600 इक्वल टू कैंसिल आंसर है 0.36 एक्सपेंशन 0.36। सेकंड क्वेश्चन 1/11 डिवाइडेड 1 इक्वल टू 5 0 0 0 11 99 and 1 0 0 0 9 1। This is that terminating at 0.0909 terminating decimal and this is non-terminating decimal। Third is integer 4 integer 1/8 simple form 33/8 divided 8 33 8 8 4 the 32 1.0 8 1 the 8 2 0 8 2 the 16 4 cancel 0 8 5 the 40। This is terminating decimal 4.125। This number is terminating decimal। Second question 13 integer 3/13। Next number 4 3/13 13 divided 3 0 13 2 जा 26 4 cancel 0 13 3 जा 39 1 cancel 0 0 0 13 5 65 13 6 28 13 7 जा 91 cancel 0 13 6 जा 22
13 6 are 22. 10 subtract 2, 8. 8 subtract 7 equal to 1. 13 1 are 13. 5 cancel 0. 13 3 are 39. 0. This is non-terminating decimal. 0.23076613 non terminating decimal. Second number divided by 2. 11 is 88. 2 cancel 0. 11 1 11. This number is non-terminating decimal. 0.181 non-terminating decimal. Here 400 divided 9. 0.0 is equal to 8 3200. Cancel 0. 100. 400 to the 800. 200. 400 5 the 2000. 0.8225. This number is terminating decimal number. Decimal number. Next question 2. Question. You know that 1 by 7 is equal to 0.142857. Can predict what the decimal expansion of 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7 are without actually doing the long division. If so, how? फर्स्ट हम लोग पहले जो है 1/7 चेक करेंगे इज इक्वल टू 0.142857. इस टू क्वेश्चन में जो है 1/7 का वैल्यू 0.142857 दिया हुआ है और हमें जो है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 फाइंड करना है. सपोज 2/7 is equal to 1/7 into 2.
1/7 का जो वैल्यू है 0.14287 मल्टीपल ऑफ 2 इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.14287 मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 2 8 जा 16 and 1 17 carry 1, 2 जा 4 and 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 point 2 0 जा 0, this value 0.285714. Third number 3/7 is equal to 1/7 multiply 3 is equal to 0.142857 into 3. 3 7 जा 21 carry 1 carry 2 15 16 17 carry 1 24 and 1 25 carry 2 6 7 8 3 4 the 2 in the 2 carry 1 3 1 the 3 and 1 4 0 1 to 0.428571. Next number 4/7 is equal to 1/7 multiple of 4 is equal to 0.142857 multiple of 4 is equal to 4 7 is 28 carry 2, 4 5 is 20 and 22 carry 2, 4 8 is 32 and 2 34 carry 3, 4 is 8 9 10 11 1 carry 1, 4 4 is 16 and 1 17 7 carry 1, 4 1 is 4 and 1 5.0 0.571428. Next question 5/7 1/7 into 5 is equal to 0.142857 divided 5 equal to 5 7 is 35 5 carry 3 25 and 28 carry 2 5 8 is 40 42 carry 4 5 is 10 and 4 14 carry 1 5 4 is 20 and 1 21 1 carry 2 5 1 is 5 6 7.0 0.714285. Next 6/7 1/7 multiple of 6 is equal to 0.142857 into 6 is equal to 6 7 is 42 carry 4 30 and 4 34 4 carry 3 6 is 48 49 50 51 lower carry 5 12 and 5 17 carry 1 24 and 1 25 carry 2 6 7 8.3 0.857142. Next क्वेश्चन डेसिमल एक्सपेंशन आपको दिया हुआ रहेगा, इसे जो है आपको P/Q के फॉर्म में लाना है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q
where P and Q are integer and Q is equal to 0, not 0. So इस डेसिमल एक्सपेंशन नंबर दिया हुआ है, इसे हम लोग को फॉर्म में p/q के फॉर्म में लेना है. फर्स्ट आंसर, लेट x is equal to 0.6 मीटर. x is equal to 0.666. 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब जो है 6 जो है बार आ रहा है. मल्टीपल ऑफ 10 बोथ साइड. अब यहाँ पे जो है ये बार जो है सिर्फ 6 के ऊपर ही है, एक ही डिजिट के ऊपर है, तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे देखिए 2 डिजिट के ऊपर है, तो यहाँ हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. और यहाँ जो है 3 डिजिट के ऊपर जो है आपका बार लगा हुआ है, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पे 10 मल्टीपल ऑफ 10 बोथ साइड. x को भी 10 से ही मल्टीप्लाई करना है. 10x इज इक्वल टू, और इस नंबर को भी 10 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 1 डिजिट जो है पहले बाहर आ जाएगा. 6.666. इक्वेशन 1 इक्वेशन 2. Subtracting 1 from 2, 10x equal to 6.666, and equation 1, x equal to 0.666 minus 10 minus 1 is equal to 9x equal to 6.000. x is equal to 6/9. 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. x is equal to 2/3. यहाँ पे जो है x का वैल्यू हम लोग p/q के फॉर्म में फाइंड कर चुके हैं. p is equal to 2 है एंड 3 is q is equal to 3 है. नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 0.47. जैसे हम लोग क्वेश्चन 1 को बनाए थे, वैसे क्वेश्चन 2 को भी हम लोग बनाएंगे. लेट x इज इक्वल टू 0.47. यहाँ पे इन्वर्टर जो है दो नंबर पे ही आपका बार है, इसका मतलब है ये 2 नंबर जो है बार रिपीट होगा. x इज इक्वल टू 0.4747 also 47 and so on. अब हमें इसे जो है ये 2 नंबर के ऊपर आपका बार दिया हुआ है, तो हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीपल ऑफ 100 बोथ साइड. अब ये इक्वेशन जो है हमारा 1 हो जाएगा. 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे x में, तो 100x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 जब 10 से मल्टीप्लाई किए तो 1 डिजिट बाहर आया. जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट बाहर आएगा. 47.47. इक्वेशन नंबर 2. subtracting 1 equation from 2. 100x is equal to 47.47 and x is equal to 0.47. ये आप लिख सकते हैं 47, क्योंकि यहाँ पे
बार दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि 4 और 7 एक ऐसा नंबर है जो कि बार बार आ जाएगा। इक्वल टू 99x इज इक्वल टू 47.000, x इज इक्वल टू 47/99। अब फर्स्ट क्वेश्चन में था कि वो कट रहा था आपस में नंबर, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, इसमें जो है नहीं कट रहा है, तो इसमें जो है p/q where p is equal to 47 and q is equal to 99 हो जाएगा। Second answer is complete. Now next question. Question number 3, 0.001 तीन नंबर पे बार है, तो मतलब जो है कि x इक्वल टू 0.001 ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तीन नंबर पे जो है आपका बार लगा हुआ है, तो हम इसे मल्टीपल करेंगे 1000 से। मल्टीपल ऑफ 1000 both side is equal to 1000x is equal to 0.001.001. Question number 2. Subtracting equation 1 from 2. 1000x is equal to 001.001. Second, x minus x equal to 0.001. 999x is equal to 1. x is equal to 1/999. ये आपका 3/2 के फॉर्म में है, where p is equal to 1 and q is equal to 999. Third answer is complete. Next answer. Question. Fourth question. Explain 0.9999 dash dash in the form of p/q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense. Let x is equal to 0.9999। यहाँ पे कह सकते हैं कि 9 के ऊपर जो है बार हो तो इसी फॉर्म में आएगा, तो ये डायरेक्ट दे दिया है x इज इक्वल टू 0.9999। क्वेश्चन नंबर 1। इसे और इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0.9 पे बार, मतलब जो है कि 9 जो है यहाँ पे बार बार आ रहा है, ये भी इस मल्टीपल में जाएगा, मल्टीपल ऑफ 10 में जाएगा। मल्टीपल ऑफ 10 बोथ साइड, 10x is equal to 9.999। क्वेश्चन नंबर 2। Subtracting equation 1 from 2. 10x is equal to 9.999 minus x by equal to 0.999।
9x is equal to 9. X is equal to 1. 9 by 9. 9 1 the 9, 9 1 the 9 equal to 1. ये 1 P और Q के फॉर्म में है. अब यहाँ पे वेयर P is equal to 1 and Q is equal to 1. Answer is complete. Next question. Next question. What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expression of 1 by 17? Perform the division to check your answer. यहाँ पे 1 by 17 जो क्या हुआ है, इसे हम लोगों को डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना पड़ेगा. इसके लिए हमें 17 को 1 से डिवाइड कराना होगा. तो हम पहले क्या करते हैं, 17 का टेबल यहाँ पे जरूरत पड़ेगी. 17 का टेबल यहाँ पे लिख देते हैं. 17 हो गया 17, 17 जो बताइएगा 17 का टेबल 17 का 85, 17 is the 102, 20 is the 111, 17 is the 136, 29 is the 153, and 20 is the 120. So point 0 is equal to 0, 0, 0. अब 17 5 are 85. 5 50 0 0 17 8 are 136. 4 1 10 0 28 is 136. 4 cancel 0. 17 to the 34. 6 cancel 0. 23 is the 51. 0. 25 is the 55. 0. 17 to the 34. 6 and 4 subtract of 3 is equal to 1. अब यहाँ पे 0 यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे 0 लग सकता है. How many times of 9 times of 53? 3 is 153. कैंसिल यहाँ पे जो है नहीं आ पा रहा नीचे, जो हम यहाँ पे लिखेंगे 17 5 the 85. No, 17 4 the 68. 2 cancel 0. 17 1 the 17. 3 cancel 0. 17 1 the 17. 3 13. तो यहाँ पे जो है आपका डेसिमल बढ़ता ही जा रहा है. यहाँ पे जब 0 लगाते हैं तो हमारा फिर ये नंबर आ जाएगा 17 119. 1 cancel 0. 17 6 102. जैसे डेसिमल फॉर्म आ चुके हैं 0.05 8 8 2 3 5 2 9 4
तो जितने भी नंबर आ चुका है, लेकिन हम यहाँ पे चाहेंगे टू 1 2 3 3 डिजिट के बाद हम नंबर वो लिख सकते हैं और ये पूरा भी लिख सकते हैं 0.05 8 1 2 3 1 2 3 डिजिट है। यहाँ पे आप 0.059 लिख सकते हैं। इस तरह से 5 क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। Question number 6, look at the several example of rational number in the form of p by q, where q is equal to not 0, where p and q are integers with no common factors other than 1, and having terminating decimal representation expression can you guess what property q must satisfy? Answer: terminating decimal expansion इसमें एग्जांपल लेना है जो कि रेशनल नंबर हो p by q के फॉर्म में हो और q is equal to not 0 where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal expansion यानी this what property जो है q जो है वो सेटिस्फाई करे। तो इसके लिए मुझे लेना पड़ेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज 3/10, अब 10 इज इक्वल टू 5/100, नेक्स्ट 8/1000। अब डिनोमिनेटर का जब हम फैक्टर का 10 का फैक्टर निकालते हैं तो यहाँ पे आता है 2 5 5 1। इसका मतलब है कि यहाँ की 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 3/2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। इसी तरह से हम यहाँ पे 100 के जब फैक्टर करते हैं 2 50 टाइम्स, 2 25 टाइम्स, 5 5 टाइम्स, 5 1 टाइम्स। यहाँ पे 5/2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। इसी तरह से नेक्स्ट 1000 का जब हम फैक्टर करते हैं 2 500, 2 250, 2 125, 5 25, 5 5 and 5 1। यहाँ पे 2 का पावर 3 8/2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3। इसके बाद जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि क्यू टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन Q must have a property of prime factor of Q is in the form of 2 का पावर 8 into 5 का पावर 8। Now question is solved. Next 7 question. Next question. Write 3 numbers whose decimal expansion are none, terminating, none recurring, another name is none repeating। यहाँ पे जो है यहाँ पे 3 डेसिमल एक्सपेंशन का जो है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिक्यूरिंग का एग्जांपल देकर के आपको बताना है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आंसर
0.011 011 01111 2.47 0 47 000 47 000. Another example, 3.221. Next, 221 221. Now question number 8. Next question, find three different irrational number between the rational number 5/7 and 9/11. Answer, 5/7 and 9/11 के बीच का रेशनल नंबर बताना है. 7 डिवाइडेड 5 इज इक्वल टू 0. 7 7 49 1.1 3 0. 7 4 28 2 cancel 0.71. Next, 11 by 9/11 0.0. 11 8 88 2 cancel 0. 11 11 9 cancel 0. 11 8 88 2 cancel 0.818. 0.818. इसके और इसके बीच का जो है रेशनल नंबर हमें सिलेक्ट करना है. फर्स्ट 0.7244 next number. Next 0.745 74 55 74 555. Next example 0.78678 6678 666. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो इसके 5/7 के ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो है और 0.8 टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसके बीच के रेशनल नंबर जो है 1 2 3 एग्जांपल में है 32 है 24 है एंड 28 है. और इसके बाद यहाँ पे 82 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 0.81 पे ही लेना है. हम 80 भी ले सकते हैं और 82 नहीं ले सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल. इट इज फर्स्ट √23. इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर. तो इरेशनल नंबर. सेकंड √225 इज परफेक्ट स्क्वायर. 15 it is perfect square. So rational number
terminating decimal number. It is terminating decimal number. So decimal number. It is not. It is non-terminating decimal number. So irrational number. This is same. It is non-terminating decimal number. So irrational number. Now 1.3 is complete. Next 1.4 start.